already shared all the details on your email. I hope you all have gone through details. So we are conducting this course for 15 days. So basically this is going to be like a crash course. So the trainer is going to cover only basic things about these programming languages, right? So I know you all know to learn the Java course, it would take almost 3 to 4 months to learn only core Java. So here it is not possible that we can conduct all these concepts of all these courses. So here what we are going to do, we are going to take the only basic things in the sense the tech concepts which is required to clear the interviews. I know most of you have attended interviews and you're facing an issue with these technologies, like most of the companies are asking for this like Java, C, C++, C as technologies. The questions are related to these technologies, right? So we will cover the only overview of these courses. C, C++, the basic languages like C++, Java, Node.js, C Hash, Spring Boot. Okay, so I know you all are from ML and DEA batches. So you've already completed the ML and data set course. So you're already aware about the Python language and you're already done with all these things. So basically, the basic scenario for scheduling these 15 days crash course was few of the students were facing issues while attending the interviews. So recruiters were asking for these technologies. Recruiters were looking to have knowledge of these technologies. So we have scheduled this 15 days crash course, right? Yes. Hello, am I audible? Yes, sir. No audible from your end. Yes, sir. Are you all there? Yes. सबने खाना खाया ना? हाँ सर. कोई है अभी बाकी? Okay, no issues then, guys. Raj Kolle is the trainer for this 15 days crash course. So he's joining within a 5 to 10 minutes. So he's busy in some other task. So he'll join in a while. Okay. So till then, we will have some kind of a discussion, kind of question and answer rounds. Yeah. So guys, how many of you have attended interviews or anyone is here already placed? How many of you are already placed from this 85? Hello, no one is placed. No, I'm sure most of you are already placed. And you're looking to learn these technologies only, right? Or you're still looking for job? Yes, sir. Humaira, I guess you are already placed, na? Humaira Sayed. Yes, sir, but the training is compulsory, so that's why. Yeah, I know the training is compulsory, but have you attended interview other than this company? Means they require the 1 month, 15 days or 1 month of training for these technologies. Yes, anyone else have attended interview? Anyone else have attended interview with other company? Anyone is having any offer other than this company? Yes, sir. No, sir. Just attended the TR and HR interview. Okay, okay, no issues then. So Raj had joined. So let me introduce. So he's the trainer for your crash course session. So he's going to conduct your this crash course session for 15 days. Okay, we'll conduct it from Monday to Saturday, 2 p.m. to 5 p.m. Okay, so as I told you, this is going to be an overview of these technologies. The technologies like C, C++, Java, C Hash, .NET, Node.js, etc. Right? Yeah, so Raj will cover the basic concepts like the overview of these technologies only. He's not going to teach you in depth because I know it will take around more than 6 months if you're going to learn this course in a depth. Yeah. So in 15 days, Raj will cover only the important points, important things which requires to clear the interviews. Right? So 1 minute. Yes, Raj, hi, good afternoon. Hi, good afternoon.
Yeah. So I have already informed them. So you can take it ahead. You can start your session. Okay. Yeah. Sure. Thank you. Thank you, Yeah, guys. welcome. Yeah. Hi. Good afternoon, all. Good afternoon. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Just give me a minute. Just a minute. Okay. Yeah, just a minute. Huh? Okay. Okay. Hello, guys, silence please. Just give me a minute. I will connect with my system. Just a minute.
Hello. 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 Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Voice is okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. First myself, I have Raj Kole, and I have around 10 years experience in Java backend development. Also, 7 years experience in Java development. I work with multiple organizations. Means I work with Tata Groups. I work with Credentech. I work with Hematite Infotex. I work with Infosys. Okay. Also, I'm taking trainings on CDMVSC Global. This is a corporate training, and here training on the Java peoples in Symbiosis Institute. Okay. Voice is not clear. And nowadays, a lot of openings are available in IT industry, and we need to crack the interviews and just got the offers. Okay. You knows Hindi, Marathi, English. Can I use the combined language? Yes, sir. Or anyone is? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Means most of the people are Marathi. in Maharashtrian. Yes, sir. Yes, sir. Or anyone Yes, is? sir. Okay. Yeah, my voice is breaking. Comfortable with Hindi. Yes, sir. Voice is breaking. Okay. Okay. Yeah. तो बेसिकली किस किस इंटरव्यू दे दिए हैं अभी तक किसने किसने सर इंटरव्यू दिए हैं सर मैंने एटॉस में दिया था टेक्निकल राउंड अच्छा गया था पर कम्युनिकेशन में आई थिंक रिजेक्ट किया है सर एक्चुअली मेरा टीसीएस में हुआ था एचआर टेक्निकल तक गया था मैं तो टेक्निकल में रिजेक्ट हो गया ओके और किसने दिया था मैंने दिया सर था मेरा भी हो गया हेलो yes go ahead
सर मेरा भी कैपजेमिनी का हो गया था, बट सर डॉक्यूमेंटेशन राउंड में बाहर निकला हूँ। जस्ट मिनट। Then I will start the one by one topics. That means based on the interview questions, and we create one plan, and based on that plan we execute the trainings. Yeah. एटॉस में किस राउंड में आप बाहर निकले थे? किसने दिया था एटॉस में राउंड? सर सेकंड राउंड में परमेश्वर पाटिल। सर और किसने दिया था? हाँ सर, मैंने भी दिया था, टेक्निकल दिया था, लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ शायद से। टेक्निकल दिया था, तो टेक्निकल में आपने कौन से प्रोफाइल के लिए दिया था? पाइथन ट्रेनिंग। पाइथन? हाँ, पाइथन ट्रेनिंग। ओके 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 ओके। हाँ, और किसने दिया था? कैपजेमिनी में किसने दिया था? टीसीएस में दिया था मैंने। कैपजेमिनी में मैंने दिया था सर। हाँ अक्षय, टीसीएस में क्या क्या क्वेश्चंस थे? सर एक्चुअली टेक्निकल राउंड स्टार्ट होने के बाद मेरे जो रिज्यूम था उसके ऊपर ही हुआ। Me about SQL commands. That's it. ओके ओके। हाँ, और सर एक्चुअली मेरा टेक्निकल और ईएमआर साथ थे दोनों भी। टेक्निकल और एचआर साथ में थे। हाँ। तो क्या क्वेश्चंस थे आपके लिए? मतलब कौन से लैंग्वेज पे क्वेश्चन किए? एसक्यूएल के बारे में थे सर। एसक्यूएल के बारे में। यस ओके ओके। हाँ, और किसने दिया था? सो मैंने भी दिया था कैपजेमिनी का, तो मुझे ओपी वगैरह पूछा था और प्रोजेक्ट्स पूछे थे। ओके ओके ओके। हाँ सर मैंने कैपजेमिनी दिया था, पूरा क्लियर हो गया था सर, एचआर भी क्लियर हो गया था, बट क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था सर डॉक्यूमेंटेशन राउंड से बाहर। डॉक्यूमेंट राउंड में क्यों बाहर निकला? क्या गड़बड़ थी आपके डॉक्यूमेंट राउंड में? डॉक्यूमेंट्स में सर वो मेरा 55% एग्रीगेट था और 60% के नीचे वो नहीं ले रहे थे। उनका 2 ड्राइव था शायद, एक 50% वाला और 60% वाला,
तो सर मैंने हाँ। दिल्ली को भी अप्लाई किया था, तो क्या पता कैसे सेलेक्ट हो गया था सर उसमें उन लोगों ने। तो फिर मतलब एचआर आपके क्राइटेरिया की बेसिस से आप बाहर निकले। लास्ट ईयर के, सॉरी सर, इंजीनियरिंग का एग्रीगेट कम निकला ना सर, 55 ही था। हम्म। तो सर उन लोगों ने नहीं लिया। मेरा एचआर भी टेक्निकल हो गया था, क्लियर हो गया था, एचआर भी हो गया था पूरा। हम्म। लोगों ने लोकेशन वगैरह सब बता दिया था सर। ओके ओके। और किसने दिया था? यस सर, मैंने दिया था कैपजेमिनी का इंटरव्यू। सर उसमें उन्होंने बेसिक्स ऑफ सी पूछे थे मुझे क्वेश्चंस, एंड दे एडवांस क्वेश्चंस ऑन जावा। सो आई डिडंट क्रैक दैट इंटरव्यू सर। ओके ओके। और किसने दिया था? हॅलो सर. यस। सर मी अल्ट्रा इन्फोटेकचा दिला होता आणि क्रॅक पण झाला होता. एचआर मध्ये बाहेर पडलो. याच्यामध्ये काय क्वेश्चन केलेले? याच्यामध्ये मी व्यवस्थित दिलता विचार. एचआर मध्ये मला लोकल विचारलेलं, शिफ्ट बद्दल विचारलेलं आणि अबाउट फॅमिली बद्दल विचारलं होतं. वाय टू हाय विचारलं होतं. दिलं होतं व्यवस्थित. कशामुळे झालं बहुतेक कॉन्फिडन्स मला. ओके ओके. हा नेक्स्ट कोणी दिलं होतं आणखी? नेक्स्ट. सर मी दिलेला सर 4 डिसेंबरला सिम्बोसिस ड्राईव्ह. तर सर त्यांचं लेटर ऑफ इंटेंट आलंय, बट त्यांनी ट्रेनिंग करायला सांगितलं. काय आलंय त्यांचं? लेटर ऑफ इंटेंट दिली त्यांनी, बट सर हा कोर्स करायला सांगितले. ओके 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 ओके. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट कोणी दिला आणखी? सर मी रॅबिट्स आणि टॉर्टाईचा इंटरव्ह्यू दिला होता. त्यामध्ये टेक्निकल राऊंड मध्ये त्यांनी युआय पाथ बद्दल विचारलं. युआय पाथ जेनरिक व्हेरिएबल काय असतात काय नाही. आणखी कोणी दिलेलं आहे? आणखी कोणी दिलेला का इंटरव्ह्यू? एमडॉक्स मध्ये दिलेला सर. टेक्निकल राऊंडला मला इंट्रोडक्शन विचारली, प्रोजेक्ट विचारला, एक पत्र दिलेलं आणि प्रोग्राम दिलेला. ओके. आता मोस्ट ऑफ दी आपण काय बघितलं की तुमचे सर मी पण दिला होता. काय विचारलं? कुठल्या राऊंडला गेलेले तुम्ही? हॅलो हॅलो. हा माझा आवाज येतोय? येस सर. हो सर. हा कुठल्या राऊंडला गेलेले तुम्ही? आणखी कोणी दिला होता ना एमडॉक्सचा? ठीक आहे चला. आता आपण सगळ्यांचे अनुभव ऐकले की बाबा मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स कुठं होत आहेत आपल्या. सॉरी या वी आर फेसिंग मोस्ट ऑफ द इश्यूज फर्स्ट इन आवर रिज्यूमे. योर रिज्यूमे आपका प्रॉपर फॉर्मेट में ही होना चाहिए. ओके. और आप रिज्यूमे में वही चीज ऐड करोगे जो आपको आती है.
If you perfect in any concept, then just put those concept in your resume. अगर आपको वो चीज आती नहीं है तो उसको रिज्यूमे से हटा दो। आपको यहाँ पे नहीं, फ्रेशर लेवल पे नहीं, जैसे भी आप आगे चले जाओगे, मतलब एज एक्सपीरियंस टैग लेके भी चले गए, देन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर CV और योर रिज्यूमे, है ना। तो पहला आपका इंटरव्यूअर को आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड कैसे पता चलता है? बेस्ड ऑन दी yes okay, based on the your resume. हाँ, तो मोस्ट ऑफ दी एज अ रिज्यूमे आपने कौन से लैंग्वेज का ट्रेनिंग लिया है अभी तक? लाइक आपने सी का लिया होगा, C++ का, जावा का, पाइथन का, देन अगर आपने फुल स्टैक में किया होगा तो C# का किया होगा, Node.js का किया होगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। हाँ, तो मुझे बताइए कि आप C++ में वहां पे अभी तो आप मार्केट में कोई एप्लीकेशन नहीं बन रहा है ना? तो वहां पे एप्लीकेशन किस में बन रहे हैं? एक तो आपके पाइथन में बन रहे हैं, एक तो आपके जावा में बन रहे हैं, एक तो आपके C# में बन रहे हैं, एक तो आपके Node.js में बन रहे हैं या AngularJS में बन रहे हैं। इनमें आपके एप्लीकेशंस बन रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके रिज्यूमे जब आप डिजाइन करोगे उसमें तो एक लैंग्वेज तो आप उसको ऐड भी करोगे, है ना। मतलब आपको जावा तो ऐड करना है, C# तो ऐड करना है, PHP तो ऐड करना है ना। अगर आपने ये ऐड नहीं किया तो आपका जो आगे वाला इंटरव्यूअर है वो एज अ फ्रेशर मीन एज अ बेसिक मीन्स आपको सजेस्ट करेगा एज अ बैकएंड सपोर्ट के लिए, एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए, और आपको डेटा एंट्री के लिए, और आपको DB एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मतलब बेसिकली जो भी SQL के डेटाबेस रिलेटेड ऑप्शन ऑपरेशंस रहेंगे वहां पे आपको काम करने के लिए वो क्या करेगा, आपको इनवाइट करेगा, है ना। तो बेसिकली एक लैंग्वेज आप किसमें ऐड करो, एक तो जावा करो, एक तो पाइथन करो, नहीं तो C# करो। आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है वो एक लैंग्वेज आपके रिज्यूमे में होनी ही चाहिए, है ना। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी उस ट्रेनिंग में आपके C लैंग्वेज में, C++ में आपने क्या सीखा? उसमें आपने सीखा बेसिक उनकी कंसेप्ट और लॉजिक बिल्डिंग, है ना। मतलब आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है तो C इज अ मैंडेटरी। C के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एवरीथिंग इज वी नीड टू राइट इट, है ना। मतलब हमें अगर फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है, हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट आउट करनी है, हमें एरे में से सबसे बिग नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है, देन वी यूज our C languages, है ना। बेसिकली C इज द बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें अभी तो कोई एप्लीकेशन डिजाइन नहीं होते, है ना। और जो डिजाइन होते हैं वो C लैंग्वेज आपको आती नहीं है, बिग लेवल, है ना। जैसे कि आपकी विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो आपके C में बनी है, लेकिन इज ग्राफिक बेस्ड लैंग्वेज। वो आपको ये करने के लिए मिनिमम आपको 2 साल का ट्रेनिंग चाहिए C का, तो ही आप C में प्रोग्राम कर सकते। सेकंड वन क्या है, तो C++ में आपकी डेटाबेस रिलेटेड मींस डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स आपके C++ में होते हैं, है ना। देन आगे जब चले जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूज होने वाली लैंग्वेज है आपकी जावा लैंग्वेज, जिसमें आप स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, जिसमें आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, है ना। ओके, तो अगर हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाना है, तो हमें जावा आनी मैंडेटरी है। ओके, अदरवाइज जावा को पैरेलल में क्या है, तो जावा को पैरेलल में आपका पाइथन है, C# है, मतलब ASP.NET। एक तरफ जावा चल रहा है, दूसरी तरफ .NET चल रही है। तो एक तो आप जावा लेके आगे चले जाइए मार्केट में, नहीं तो आप .NET लेके चले जाइए, नहीं तो आप पाइथन लेके चले जाइए। 3 लैंग्वेज लेने के बाद ही आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली किसी को सी के बेसिस पे किसी को क्वेश्चंस किए, मोस्ट ऑफ दी तो नहीं किए होंगे। अभी जो मार्केट में जो डेवलपर्स है
उनको सी किसी को भी नहीं आती है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल मीन जो है वो रिटायरमेंट के लिए आए, और रिटायरमेंट वाला बंदा आपका इंटरव्यू थोड़ी लेगा, वो तो एज अ थर्ड फोर्थ लेवल का इंटरव्यू लेते हैं। लेवल का इंटरव्यू तो सेकेंडरी डेवलपर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मीन जो सीनियर सिस्टम इंजीनियर्स रहते हैं, सीनियर सिस्टम डेवलपर्स रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एनालिस्ट रहते हैं, जैसे कि टीम लीड रहते हैं, इस लेवल के पीपल सबका इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो उन लोगों को ज्यादा तो प्रेफरेंस रहता है आपके जावा पे, सी पे, सॉरी जावा पे, पाइथन पे, डॉटनेट पे, या एनी अदर माइक्रो सर्विसेज। ओके। और दूसरी चीज है कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डेटाबेस के ऊपर रहते हैं, मतलब चाहे आप डॉटनेट डेवलपर बनो, जावा डेवलपर बनो, नहीं तो पाइथन डेवलपर बनो, आपको डेटाबेस के साथ तो काम करना ही है। तो अगर डेटाबेस के साथ काम करना है तो आपको एसक्यूएल कमांड आनी मैंडेटरी है। तो एसक्यूएल में बेसिक कमांड्स होती ही क्या है, बेसिकली 5 लैंग्वेजेस है, जिसमें आपका डीडीएल आती है, मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड वन इज अ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड वन इज अ डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ वन इज अ टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। इसके अलावा कोई लैंग्वेज ही नहीं है ना। डीडीएल में हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे, है ना। और डीएमएल में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनी है, जैसे कि टेबल बना है तो टेबल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, टेबल का अंदर का डेटा रिमूव करेंगे। ये फंक्शनलिटी हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डीएमएल लैंग्वेजेस थ्रू आपके ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करेंगे। मतलब लाइक आप इंडेक्स पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप व्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, देन वी यूज द डीएमएल लैंग्वेज। ओके। देन डीसीएल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पे आपको रिवोक करना है, जहाँ पे आपको कमिट करना है, ये जो सेव पॉइंट अप्लाई करना है, रोल बैक अप्लाई करना है, then we use the DCL, data control language. And last one is the TCL, transaction related, either commit or rollback, then we use the TCL, है ना। ये सब लैंग्वेजेस यूज करके हम डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, चलो मैं एक बाय वन क्वेश्चंस भी लेता हूँ, आपके किसी के क्वेश्चंस होंगे तो भी। जस्ट अ मिनट। रिकॉर्डिंग परमिशन, रिकॉर्डिंग की परमिशन देनी है। एक तो आप रिकॉर्ड करो या सर परमिशन दे दो, कुछ भी करो। जस्ट अ मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग चाहिए आपको इसकी? यस सर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके। Just a minute. ओके, या ओके। तो बेसिकली अगर आपको कौन सी भी फील्ड में जाना है, देन यू आर डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको एसक्यूएल के बेसिस पे प्रोग्राम करना ही है ना। मतलब चाहे आप डॉटनेट डेवलपर बनो, चाहे आप पाइथन डेवलपर बनो, चाहे आप और कोई डेवलपर बनो, है ना। मैंडेटरी क्या है आपका, डेटाबेस मैंडेटरी है ना। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हॅलो सर। हाँ बोलिए। सर डेटाबेस हे पूर्ण एसक्यूएलचाच पार्ट आहे का? जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट, जस्ट गिव मी अ मिनिट।
सर ते DDML, DML आणि DCL परत रिपीट करा ना. हाँ करतो जस्ट. ठीक है. चलो SQL इज नथिंग बट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, जैसे कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Java is a programming language, Python is a programming language. वैसे SQL is a structure query language. If you want to perform the operations on queries, then we use the SQL. SQL is a tools. Okay, SQL is a tools and we provide these tools with every databases. है ना, मतलब जैसे आपने SQL में MySQL डाउनलोड किया तो MySQL के साथ आपका SQL आ जाएगा. आपने Oracle डाउनलोड किया तो Oracle के साथ आपका SQL आ जाएगा. आपने Postgres SQL किया तो Postgres SQL के साथ आपका SQL आ जाएगा. आपने अगर MS Access डाउनलोड किया तो MS Access के साथ आपका SQL आ जाएगा. आपने अगर SQL सर्वर डाउनलोड किया तो उसके साथ हमारा SQL आ जाएगा. तो SQL क्या है? This is a structure query language. This is basically tools. We use these tools in our database and to perform the operations on database. Basically, SQL categorized into 4 sub languages. Okay, फोर सब लैंग्वेजेस. तो कौन से 4 सब लैंग्वेजेस है ना? तो फर्स्ट वन इज नथिंग बट योर DDL है ना. DDL नथिंग बट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना. इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपको कुछ डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेसिकली, देन वी यूज दी DDL कमांड्स है ना. डेटाबेस में क्या होगा? क्रिएट, मतलब इसमें 5 कमांड्स आती है बेसिकली है ना. इसका नाम है डॉक्टर कैट. ओके है ना. D मतलब ड्रॉप, R मतलब रिवोक, C मतलब क्रिएट, A मतलब अल्टर एंड ट्री मतलब ट्रंकेट. डॉक्टर कैट, इसमें कितने कमांड्स आती है? 5 कमांड्स आती है. अगर आपको DDL कमांड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? इस 5 कमांड्स का यूज करना पड़ेगा है ना. देन सेकंड वन इज अ DML, डेटा मैनिपुलेशन. आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, उसके 4 DDL कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं? DDL लैंग्वेज के 5 कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. ओके, देन बाय यूजिंग DML commands, means data manipulation language, we perform the operation on tables, objects. बेसिकली टेबल्स आएगा, व्यू आएगा, इंडेक्स आएगा, उस पे हम क्या कर सकते हैं? DML थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. हाँ, तो उस DML में कौन सी कमांड्स यूज होती है? इसमें बेसिकली CRUD, ये 4 कमांड्स यूज होती है. C मतलब क्रिएट है ना, इसमें देन क्रिएट, रिमूव, अपडेट, नहीं, क्रिएट, रीनेम, अपडेट एंड डिलीट. ये 4 लैंग्वेज यूज करके हम क्या कर सकते हैं? टेबल क्रिएट कर सकते हैं है ना. टेबल का डेटा फेच कर सकते हैं, उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं. बेसिकली अगर आपको करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, देन वी यूज दिस DML लैंग्वेज. देन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होगा? परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन डेटा है ना. उसमें डेटा को हम क्या करेंगे? सेव पॉइंट यूज करेंगे, सेव पॉइंट. और second one is a just a minute. थर्ड वन इज a TCL. TCL में 2 कमांड्स आएगी, एक आएगी कमिट
और दूसरी आएगी रोल बैक, है ना। और इसमें सेव पॉइंट एक आएगी और एक कमांड आएगी डेटा कंट्रोल में। इसमें आपकी बेसिकली फंक्शनल भी आती है, मतलब फंक्शन प्रोसीजर्स वी राइटिंग द DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, या इसमें आपके ये आ जाएगी ग्रांट एंड रिवोक, है ना। ग्रांट, रिवोक एंड सेव पॉइंट्स अंडर दी DCL कमांड। यहाँ पे 5 कमांड्स हैं डॉक्टर कैट में। इसमें 4 करंट रिपोजिटरीज है, इसमें 3 है और TCL में 2 है, कमिट और रोल बैक्स। ओके Sir, कमांड्स। हाँ, what is the difference between SQL and no SQL? वेट वो मैं बाद में आपको NoSQL का एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट। बेसिकली क्या है, मतलब एक सिंपल तुम आपको डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। SQL यूज्ड फॉर द स्मॉल डेटा and NoSQL is used for the big data. If you want to perform the operations like Hadoop or big data, that time we use the MongoDB. MongoDB is a NoSQL. And if suppose if you want to perform the operation on the basic data, है ना, means like any application data, that time we use the SQL. Okay, NoSQL की commands almost same है, लेकिन वो operations big data पे करता है, जहाँ पे huge data है। जैसे कि आपको IPL का record maintain करना है, जैसे कि आपको इंडियन मूवीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जैसे कि आपको इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दैट सिनेरियोस वी यूज द NoSQL डेटाबेस। एंड अगर आपको सिम्बायोसिस की स्टूडेंट की डिटेल्स हैंडल करनी है, मतलब दिस इज अ स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। इन द स्मॉल स्केल एप्लीकेशन वी यूज द SQL लैंग्वेजेस, मींस our SQLs, एंड इन द बिग डेटा वी यूज द NoSQLs। दिस इज द बिग डिफरेंस। और जो डीप लेवल का है मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ओके सर याला असं पण सांगतील का SQL मध्ये रो आणि कॉलम मध्ये डाटा असतो, तर तसा प्रत्येक ठिकाणी मिळत नसल्या कारणानं NoSQL मध्ये तो आपण करू शकतो। झालं तुमचं। हॅलो हॅलो हा आवाज ब्रेक झाला। हॅलो सर। हा येतोय आता, बोला। सर आपण SQL मध्ये आपण पाहिलं रो आणि कॉलम मध्ये डाटा आपल्या डेटाबेस असतो आपल्याला इन्फॉर्मेशन, पण असंच प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला मिळणार नाही, त्या ठिकाणी आपण NoSQL अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आपण यूज करू शकतो तिथे। करेक्ट आणि त्याचा मेन मोटो तोच आहे की इथं आपण जर डेटा घेणार असेल तर तो आपल्याला मीन्स रो कॉलम फॉर्मॅट मध्ये मेंटेन करायला लागतो। आणि जिथं बिग डेटा येणार आहे, तुमच्याकडे डेटा म्हणजे थाउजंड्स ऑफ डेटा तुम्हाला एट अ टाइम येणार आहे, त्यावेळेस तुमचा कॉलम आणि त्यावेळेस सॉरी उस समय आपका कॉलम्स और आपके रोज आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस वंस, दैट टाइम वी यूज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप बेसिकली, and this is nothing but the NoSQLs. Okay, we just see the first डॉक्टर कॅटचा एक वेळेस फुल फॉर्म सांगता का? सॉरी सर डॉक्टर कैट DRCAT। हाँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं। हाँ यस सर यस। हाँ या D is nothing but drop। डॉक्टर कैट का D लिया हमने फर्स्ट, ड्रॉप। ओके, सेकंड R मतलब रीनेम। ओके, थर्ड वन C मतलब क्रिएट,
फोर्थ ए मतलब अल्टर एंड डॉक्टर कैट, टी मतलब ट्रंकेट. Okay, these are the 5 commands available in DDL. Okay, what is the use of drop? This command is used to delete object from the database. Rename, this is used to rename the object existing in the database. Create, this command is used to create the database or its object like a table, index, function, view, store procedure and triggers. Okay, A is alter. This is used to alter the structure of the database. If you want to add any column inside the table or remove any column from the tables or create new, means alter the database functionalities, then we use the alter commands. Okay, then T is a truncate. This is used to remove all records from the table, including all spaces allocated for the records are removed. Okay, basically ड्रॉप में आपको टेबल ड्रॉप हो रहा है और ट्रंकेट के थ्रू आपका डेटा डिलीट हो रहा है. मतलब ट्रंकेट किया तो आपके टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके इसका टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, लेकिन डेटा आपका रिमूव होगा. और जब आप ड्रॉप करते हो तो कंप्लीटली टेबल ही ड्रॉप होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट. ओके, सेकंड वन इज DML, means data manipulation language. The SQL commands that deals with the manipulation of data present in the database belong to the DML or data manipulation language, and this include most of the SQL statement. It is the component of the SQL statement that controls access to data and to the database. Basically DCL commands statements are grouped with DML statements. So DML में क्या क्या आएगा? Fruits, okay, is nothing but insert, update, delete, select. Okay, basically select आपका DQL में आता है. Okay, DQL में only आपका select आता है, जहाँ पे आपको एक वर्चुअल डेटा मिलता है ना. और DML थ्रू आप फिजिकल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. तो मैं पहले आपको एक बार डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, DCL इसमें ना और एक लैंग्वेज ऐड कर देते हैं हम. ये बेसिकली इसी में आता है, DML में ही यूज होता है वो, लेकिन हम लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. DQL statements are used to perform the queries on the data within schema objects. The purpose of the DQL commands is used to get some schema relation based on the query passed to it. We can define DQL as follows. It is a component of SQL statement that allows getting data from database and imposing order upon it. Basically डेटा लेने का और डेटा आपको डिस्प्ले करना है. इसमें कौन सी कमांड आती है? आपकी सेलेक्ट कमांड आती है. दिस इज वन पार्ट ऑफ द DML ओनली. और DML में बाकी कौन सी कमांड आएगी? फिर आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट. ओके, देन DCL में आपके ग्रांट एंड रिवोक, these two commands are under the DCL. ओके, मींस बेसिकली DCL में क्या होता है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके डेटाबेस डेवलपर को परमिशंस देता है ना. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम किसी यूजर को अगर परमिशन सेट कर रहे हैं, देन वी यूज दी DCL. ग्रांट मींस अगर आपको क्रिएट करने की परमिशन है, ग्रांट किया तो यस, अगर रिवोक किया तो नो. आपकी जो क्रिएट की ये थी परमिशन थी, वो उसने क्या किया है? रिमूव किया है. आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होगी जिस वेबसाइट्स में हम ओनली देख सकते हैं, उसमें अपडेट नहीं कर सकते. इसमें हम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं कर सकते. इसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं. दिस इज दी बेस्ड ऑन दी योर परमिशंस. और इफ यू वांट टू प्रोवाइड द परमिशन टू द डेटाबेस डेवलपर, then we use the DCL, data
control language. This will include commands such as grant and revoke, which mainly deal with the write permission and other control to the database system. Okay. And last one is the TCL. TCL by using commit, rollback and आपका save point पे भी यहाँ पे आएगा, है ना? Just I will remove this save point here. Okay. Yeah. Save point किसमें आएगा आपके? यहाँ आ जाएगा under the TCL. Okay. This is the save point. Okay. And by using these commands, we perform the operation on transactions like the commit the transaction, roll back the transaction in case of any error occurs. Okay. Basically आपने क्या किया, कुछ operations perform किए हैं, है ना? उसमें कुछ data insert हुआ है, कुछ data insert हुआ ही नहीं है, तो हमें क्या करना है कि उस data को रोल बैक करना है, मतलब रिवर्स करना है, हमें उस डेटा को एंट्री नहीं करनी क्योंकि गलत एंट्री गई है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, रोल बैक यूज करेंगे. एंड लास्ट वन इज द सेव पॉइंट्स, है ना? बेसिकली अगर आपने रोल बैक किया तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरा डेटा नहीं लेना है, उसमें से मुझे, अगर मेरे पास 100 स्टेटमेंट है तो मुझे पता है कि मेरी 90 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओनली 10 कमांड्स में कुछ गड़बड़ हुई है, 10 कमांड्स के डेटा में कुछ गड़बड़ हुई है, तो आई वांट टू जस्ट रोल बैक दोस डेटा. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसमें सेव पॉइंट्स अप्लाई करेंगे. तो अगर मेरा 1 to 90 तक S1 and S2, S1 is one save point and S2 is another one save point, तो दोनों डेटाबेस का डेटा मुझे एज इट इज रखना है और S2 और S3 का रोल बैक करना है. तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वहां पे सेव पॉइंट्स अप्लाई कर देंगे, है ना? ये बेसिकली हमारी कमांड्स है और इसी के ऊपर आपका पूरा एसक्यूएल डिपेंड्स है. तो आप मुझे बताइए, आपके ट्रेनिंग में आपको ये एसक्यूएल हो चुका था? Yes, sir. और नो? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. क्या क्या किया था आपने उसमें? सर वो कर्ड ऑपरेशन ही किए थे. बेसिकली एज अ जावा डेवलपर और एज अ आपको एज अ डेवलपर आपको क्रोड ऑपरेशन पे मोस्ट ऑफ द काम करना पड़ता है. अगर किसी को डेटाबेस में जाना है तो उनके लिए ये आपकी डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, टीसीएल ऑल की परमिशन चाहिए. लेकिन अगर आपको ओनली डेटाबेस पे ऑपरेशन करना है, आपका डेटा ओनली स्टोर करना और फेच करना है, देन आप ओनली CRUD ऑपरेशन ही कर सकते हो. तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, डेटा स्टोर कैसे करते हैं, डेटा ट्रंकेट डिलीट कैसे करते हैं, ये पता है आपको? Yes, sir. तो वो बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं. ओके. अभी मुझे एक चीज मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को आती है कि मेरे पास डेटा है और उस डेटा में से सपोज एम्प्लॉय का रिकॉर्ड से, और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में से मुझे हाईएस्ट सैलरी प्रिंट करनी है. करेक्ट? किसी को तो आया होगा ऐसा क्वेश्चन? Yes, sir. है ना? हाँ. तो अगर आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, लिमिट 1, ऑफसेट 1, है ना? तो इसमें क्या मिलेगा हमें, लास्ट वाली सैलरी, हाईएस्ट सैलरी डिसेंडिंग में कर रहे हैं, मतलब हमें लास्ट में जिसकी सैलरी हाई है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, है ना? सेकंड वन, अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ऑफसेट में n-1 जो भी दी है आपको उसको -1 कर दो. अगर सेकंड दी है तो n